Hello everyone, welcome to my YouTube channel Cyber Vinod Sahu. Again, this is Vinod Sahu, and let me introduce myself that I have completed my 3 years advanced diploma in Russian language. It was very long ago from Delhi University, but currently I am working as an IT professional and I am providing consultancy on cyber security, cyber solutions, cloud, automations, engineering, cost optimization solutions, and data center designing. Right. So if you have any query related to IT consultancy, you need any IT consultancy, you can directly reach out to me. But here I am going to teach you the Russian language. So I seen that foreign language, especially Russian, it can open a powerful career opportunity for you in different sectors like IT, government project, global consultancy, and international business as well. And even for the students, it is very important. Those students who especially going to Russia and their neighborhood countries to for medical and engineering kind of education degrees. So on this channel, I will start basic steps from Russian. I will start to teach you Russian language, and we will start with the basic step by step, starting from absolute basic like alphabet and pronunciations. Then moving towards, we will go for the grammar, sentences formation and conversation, daily conversation, and professional. Then professional Russian, right? I will also share my learning tips like career guidance and also practical examples as well. And you can also use Russian confidently in your real life and professional environment as well. If you are a student or you are a job seeker or you are an IT professional or language authentist, then it will definitely, this channel will help you more. So let's subscribe my channel Cyber Vinod Sahu and like and subscribe and share, like and share these videos, and join me to mastering with the Russian language with the confidence. Let's begin. So to learn any language, we need to first understand, we need to first know the alphabets. So in the Russian, we have a similar alphabets kind of English. So we have basically a Roman kind of alphabets, like it is a similar family. We say it as Slavic family. There is a Slovenic language families like Russian and Hungarian, and there are some different languages. This comes in the same family, but the alphabet wise, it is almost similar to English. So today, let's start the alphabet letters and their sounds, right? So in the first column, you will be able to see like how this is working on. Let me turn on my whiteboard as well, marker, if I can take it. Da, da, da. Hmm. So मैं आपको बताता हूँ. Let me explain you how these alphabets. These are the Russian alphabets. This is your very first chapter for today. और आज के इस चैप्टर में मैं हिंदी इंग्लिश आई विल टॉक इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी एंड इंग्लिश. सो डोंट वरी. So if you are a Hindi, you are only knows the Hindi language, then you will be able to understand. If you, अगर आपको सिर्फ हिंदी आती है तो भी मैं हिंदी में ही बताऊंगा इस चैप्टर्स को और इंग्लिश में ही बताऊंगा. So even transcript is on, so you will be able to see the transcripts also for the English users. So I will try to explain both languages. So पहली बात करते हैं रशियन अल्फाबेट्स की, जो कि हिंदी में मैं बोलता हूँ. रशियन अल्फाबेट्स में लेटर होता है
तो हो सकता है यू विल शेयर योर फीडबैक, आप अपने सुझाव और सजेशंस देते रहेंगे, तो मैं आपको अच्छा बेहतर कर पाऊंगा इस बारे में। कहाँ चला गया ये स्क्रीन? मैं एक बार दोबारा शेयर करता हूँ यार, वो स्क्रीन थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। ये पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो अभी बहुत सारे सेटअप्स रेडी नहीं है। ग्रेजुअली वी विल एनहेंस दिस सेटअप्स। तो बात करते हैं। आप देख रहे होगे, देर आर 4 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम इज प्रिंटेड लेटर्स, सेकेंड कॉलम इज रनिंग हैंड लेटर्स, थर्ड कॉलम इज नेम ऑफ लेटर्स, मीन्स हाउ वी प्रोनाउंस इट, इस लेटर का नाम क्या है, और साउंड, इसका साउंड कैसे निकलेगा। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं साउंड को? नहीं आ रहा, नहीं ध्यान आ रहा, साउंड को क्या बोलते हैं हिंदी में, जो लेटर का साउंड होता है। सिद्धि क्या बोलते हैं? चलो कोई बात नहीं, नहीं आवाज नहीं। तो पहला जो आप कॉलम देख रहे हैं, जो भी लेटर लिखा हुआ है, इसमें 2 लेटर्स लिखे हैं जो कि प्रिंट कैसे होता है। जैसे इंग्लिश में प्रिंटेड अलग होता है, और देर इज अ डिफरेंट इन प्रिंटिंग, बट हैंड राइटिंग letter is different. Similarly, in Russian also, we have a print letters are different and handwriting are something different. हिंदी में ऐसा नहीं होता। इन हिंदी वी हैव सिमिलर लेटर्स। तो प्रिंट लेटर्स की बात करते हैं, स्टार्ट। प्रिंट लेटर्स में भी 2 कैटेगरी लिखी है। जो फर्स्ट फर्स्ट कॉलम है वो हो स्मॉल कैपिटल लेटर्स, और सेकंड कॉलम है स्मॉल लेटर्स। सो जैसे इंग्लिश में होता है, लाइक in English we have a small and capital letters. Similarly, in Russian we also have a small and capital letters. ठीक है। एंड द थर्ड कॉलम इज नेम ऑफ द लेटर्स, किस लेटर का क्या नाम है, उसको कैसे बोलते हैं, और उसका साउंड कैसे यूज किया है विद एग्जाम्पल, वो हमने यहाँ पे आपको सिखाया है। तो यहाँ पे इसका साउंड है और उसको यूज कैसे किया है वो हमने बताया आपको। सो ए, इन रशियन वी कॉल्ड इट अ, दिस इज अ, सॉरी, कैपिटल एंड देन स्मॉल। In writing we will write this. So what you need to do for practice purpose, your first task is you need to bring or buy an English 4 line copy, and it will start like English. So ऊपर के 3 लाइन्स जो होते हैं, 4 लाइन्स जो होते हैं, फर्स्ट 4 लाइन्स, उसमें हम किसी भी कैपिटल लेटर को लिखते हैं। इसमें 4 लाइन्स यूज होते हैं, और देन अपर 3 लाइन्स वी यूज फॉर दिस वन स्मॉल लेटर्स। ठीक है। तो आपको ये लेटर्स लिखने की प्रैक्टिस करनी है। दिस इज योर टास्क फॉर टुडे। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट। अ आ, अ मतलब ए, इंग्लिश का ए ही होता है, ये भी लिखा भी वैसे ही जाता है, बोला भी वैसे है। वी स्पीक एंड राइट सिमिलर इन इंग्लिश। हाउ टू यूज इट इन pronunciation wise, sound wise, it's create a, it is not a, it is a. So how we use it? As in park, PARK, पार्क। तो इंग्लिश में पार्क जैसे यूज होता है, इसी में हमने पार्क ए का यूज किया है। यहाँ पर हम जो वर्ड्स यूज करेंगे वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बट उसमें रशियन का साउंड कैसे निकलेगा दैट वी वांटेड टू एक्सप्लेन यू। तो सेकंड है ब, बी, इसको रशियन में बोलते हैं बै, बै बोलते हैं बै, वी कॉल्ड इट बै। तो इसको लिखने का तरीका ये बिल्कुल वैसे ही जैसे अंग्रेजी लेटर बी का स्मॉल लेटर जो होता है उसी तरह से है, लेकिन इसमें ऊपर ऐसे ये डंडा खींचते हैं हम। स्मॉल में थोड़ा ऐसे घुमा के लेते हैं, और कैपिटल में बिल्कुल एल बना देते हैं ऊपर। और रनिंग हैंड राइटिंग में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब, बे बोलते हैं बे, अब, अ बे, अ बे, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा बोलने के लिए। शुरुआत में आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी, अ बे वे, अ बे वे, अ बे वे।
तो जैसे इंग्लिश में यूज करना तो बट, बट में ब बोला गया हमने। फिर ये जो कैपिटल बी है, जो अंग्रेजी का कैपिटल बी है, उसी तरह से ये छोटा और बड़ा तीन दो तरह से लिखा जाता है, लेकिन इसका साउंड निकलेगा पी की तरह, वे की तरह, वे। क्या बोलते हैं इसको? वे। जैसे वर्च्यू, वर्च्यू व, इंग्लिश में जो साउंड निकलेगा वी वाला साउंड निकलता है, हिंदी में मतलब इसको वैसे प्रॉपर साउंड वे बोलते हैं। इसका यूज जैसे जहां पर इंग्लिश में वी का यूज होता है वहां इसका यूज होगा। प्रोनाउंस कैसे करेंगे? अ, बे, वे, अ, बे, वे, अ, बे, वे। फिर अगला लेटर आया गे। इसका बनाने का तरीका ये है, इस तरह से। और हिंदी रनिंग में आपको इस तरह से लिखना है। देखिए, इसके कैपिटल और स्मॉल में बहुत फर्क है। ये कैपिटल है, कैपिटल ऑलमोस्ट जे की तरह बनाया हुआ है, और ये चारों लाइनों को कवर करेगा। और छोटा जो स्मॉल लेटर है, ये दो लाइनों में ही बन जाएगा, बीच की दो लाइनों में। इसको बोलते हैं गे। इंग्लिश का जी, ग्रेट। ये डी है अंग्रेजी रिटन, सॉरी, हैंडराइटिंग में, इन द हैंडराइटिंग वी यूज डी। जैसे इंग्लिश का डी होता है कैपिटल डी, वैसे ही होगा। हिंदी वाला जो, सॉरी, जो स्मॉल वाला डी है, उसको जी की तरह लिखेंगे, पर प्रिंटेड में इस तरह से आएगा। इसको बोलते हैं दे। अ, बे, वे, गे, दे। द फॉर दिल्ली। फिर जो कैपिटल ई और स्मॉल ई बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां थोड़ा सा स्मॉल वाले में फर्क है। इसको बोलते हैं ये। यहां लिखा जे है, बट इसका साउंड निकलता है ये, जैसे यट। इसमें दो बिंदु ऊपर लग गए तो ये हो गया यो। लिखा जो है मैंने, जो बोल रहे हैं इसको, लेकिन इसका साउंड निकलेगा यो, योक। नीचे आते हैं। फिर ये एक नया लेटर है, इसका किसी इंग्लिश में कोई इसका सिमिलर लेटर नहीं है। हिंदी में भी कोई सिमिलर लेटर नहीं है, इंग्लिश में भी नहीं है। इसको बोलते हैं जे। जे, जे। कैसे बोलेंगे? जे। सो यहां पर हमने लिखा हुआ है देर इज नो इक्विवेलेंट साउंड इन इंग्लिश एज वेल। तो इंग्लिश में इसका कोई इक्विवेलेंट साउंड नहीं है दोस्तों। इसको बोलेंगे जे। और जैसे मीजर, मेजर, मेजर, ट्रेजर, ज। फिर ये भी नया लेटर है, ये उल्टा जेड की तरह बनता है। इट इज लाइक रिवर्स जेड, रिवर्स जी इन इंग्लिश। इसको बोलते हैं जे, जे। वो जे हो गया, ये जे हो गया। जे, जे, जे। यहां से तालू से आवाज निकलेगा, ये जे हो गया। इसको बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में जोन, ज, ज, जोन। फिर थर्ड वन आ गया हमारे पास। आ, तो अब कैसे हो गया? अ, बे, वे, गे, दे, जे, जो, जे, जे। अ, बे, वे, गे, दे, जे, जो, जे, जे। फिर आ गया, ये इस तरह से बनेगा उल्टा एन। प्रिंटेड में उल्टा एन है, लेकिन रिटर्न में यू बनेगा, स्मॉल यू कैपिटल यू वाला, इस तरह से। ये कैपिटल और ये स्मॉल। इसको पढ़ते हैं ई। अंग्रेजी में आई के साउंड के बराबर होता है, ई बोलते हैं इसको। जैसे वीजा। ठीक है। फिर इसी के ऊपर एक चांद बिंदु लग गई, जिस तरह का लग गया। सो वी विल कॉल इट वी। इससे वाई का साउंड निकलता है, बोलते वही है, स्मॉल ई। तो जैसे मई, मई, वाई, वी का साउंड निकलता है बेसिकली। के बिल्कुल सिमिलर के की तरह है, जैसे इंग्लिश में के होता है। ठीक है, और इसी तरह से एल भी आपका वैसे ही बनता है। फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा कट रहा है, स्क्रीन को ठीक करता हूँ। तो
आपका क्या हो गया, ए बे वे गे दे जे जो जे जे ई वी क एल, एल फॉर लैम्प। ये आपको पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप पे भी मेरा चैनल है, उस पे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर यह सब आपको मिल जाया करेगा। आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब इंग्लिश में एक वर्ड आता है एफ। तो एफ का जो प्रिंटेड लेटर है वो बनेगा इस तरह से, और इसको लिखेंगे पी। पी के पीछे इस तरह से एक और गोला बनेगा, इसको बोलते हैं एफ। एफ, फन। फिर अंग्रेजी का बड़ा एक्स और या स्मॉल एक्स इस तरह लिखा जाता है, इसको बोलते हैं ह। ह, ख। आधा का मतलब का के साथ ह का साउंड आता है, इसे बोलते हैं ह। इसे अंग्रेजी में जो, सॉरी, हिंदी में एक वर्ड होता है, देर इज लेटर कॉल्ड ह। तो रशियन में देर इज नो ह साउंड, से बोलते हैं ख। ख, ख। जैसे कि वी कॉल्ड इट महात्मा गांधी, तो रशियन विल से इट महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। म, महात्मा, आधा महात्मा, महात्मा, महात्मा। मतलब ख का साउंड निकलेगा, हा का साउंड नहीं है इनके पास। फिर एक ये नए वर्ड है, ये सारे नए वर्ड हैं, नीचे वाले जितने भी वर्ड हैं नए हैं, इसका अंग्रेजी में कोई साउंड नहीं है। जैसे इसे बोलते हैं से, इसे तसे बोलते हैं। जैसे कैट्स, वैट्स, से यूज होता है। इस तरह से चे का साउंड यूज होता है, चे। चा बोल, जो अंग्रेजी का चा वर्ड है, सी एच वाला जो वर्ड है, हिंदी का चा, वो इनके पास चे बोलते हैं। सॉरी। फिर इसी तरह से ये कुछ नया वर्ड आया, तो अभी ये दोबारा रिवाइज करते हैं। ए बे वे गे दे जे जो जे जे ई का एल, एफ खा से। फिर ये आ गया श, का जो साउंड होता है श वाला श। नहीं बोलेंगे, श बोलेंगे, इसे बोलते हैं शाह। सो क्लोज टू एस एच, मतलब ये एग्जैक्टली शाह नहीं है, पर उससे थोड़ा सा क्लोज है, बट ये हार्ड रहेगा, हार्ड। शाह, शाह। हिंदी में शाह शलगम वाले शाह से आप इसको कंपेयर कर सकते हो। और तो जैसे इसका क्लोजेस्ट वर्ड क्या बन सकता है, शॉप। बट ये हमेशा थोड़ा हार्ड बोला जाएगा, सॉफ्ट नहीं बोला जाएगा, शॉप। इस तरह से ये नया वर्ड है, नया लेटर है, सॉरी, यहाँ पर इसको बोलते हैं आ, श। इसको ऐसे बोलेंगे, श्या, श्या। इसका जो प्रोनाउंसिएशन आएगा श्या, जैसे श्याम में श्याम, श्या। ये सॉफ्ट बोला जाएगा, श्या। इस तरह से ये नया नया लेटर और आया, इसको हार्ड साइन बोलते हैं, इसका कोई साउंड नहीं है, इसको हम वही बोलते हैं, इसका कोई साउंड नहीं है। और एक ये है जिसका भी, इसका भी कोई साउंड नहीं, इसको बोलते हैं वी। इसका भी इंग्लिश में कोई साउंड नहीं है, लेकिन आप इसको बोल सकते हैं शेंथिया, शेंथिया, शेन, यन, ये। तो उस तरह से इसका एक अलग तरह से साउंड निकल कर आया। सो दीज आर द अनदर लेटर। एल के बाद एम, एम इज सिमिलर, एन इज सिमिलर, ओ इज सिमिलर, पी। पी को इंग्लिश में पी बोलते हैं, यहाँ पे पै बोलते हैं। आर को एर, एस को एस, ये ऐसे ही, ये ध्यान रखिएगा, जो अंग्रेजी का सी लिखा जाता है उसको एस बोलते हैं। और ये ते, और ये यू। इस तरह से ये हो गए। यहां पर भी आते हैं नीचे, तो यहां पर इसके बाद आता है ए। ए इज एवर, जैसे ई, ए ए ए। ई नहीं बोलेंगे इसको, ए बोलेंगे। सो यू हो गया और या हो गया।
या और ये यू। सो एक बार इनको पूरा रिवाइज करते हैं, शुरू से बोलते हैं। अ बे वे गे दे जे जो जे जे ई बी क एल एम एन ओ पे एर एस ते यू एफ ख से जे श शा वे हुई ये जू जा। सो इस तरह से आप देखोगे तो हमारे पास कितने, मैं आपको काउंट ही करवा देता हूं। ये पूरी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। और आज आपको प्रैक्टिस क्या करनी है, आज आपको इन सारे लेटर्स को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। और इसी तरह से एक 4 लाइन वाली जो कॉपी होती है इंग्लिश की कॉपी, यू नीड टू बाय द इंग्लिश एंड कॉपी एंड यू नीड टू राइट देम। So this will be your 2 days or 3 days task. You need to do it 2 hours or 1 hours daily, and 30 minutes you can write it and 30 minutes you can pronounce it. I hope मेरा आज का ये फर्स्ट चैप्टर आपको मैंने पढ़ाने की कोशिश की। यू विल बी एबल टू लर्न दिस, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड इट विल बी easier for you. And but I will always welcome your feedback and suggestions, so I will get the improvements in my videos. Thank you. Please don't forget to like and subscribe and share these videos, and join my WhatsApp channel for more details.